اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نور پورٹی والی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں اور کسی نہ کسی بہترین شخصیت سے آپ کو ملواتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہیں ام حوریہ سافٹ ویئر والی ہیں یہ، تو ان سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کے لائف جرنی کے بارے میں پوچھیں گے، ان سے معلوم کریں گے کہ اسکول آئی ہیں تو کیا عزم لے کر آئی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں اپنی لائف میں۔ تو چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے تو ام حوریہ سے ملتے ہیں اور ان سے لائف جرنی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کیسی ہیں؟ اور دوسرے آپ چھوٹا سا اگر انٹروڈکشن دے دیں اپنا، تو ہمارے ویورز جان جائیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے۔ جی بالکل، میرا نام مائی سیلف ام حوریہ سافٹ ویئر والی۔ آئی ایم اسٹوڈنٹ ایٹ ریحان اسکول کرنگی کیمپس لیول 1۔ آئی لیو ان کراچی اینڈ آئی ایم 13 years old۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ تو بیٹا آپ ماشاءاللہ ریحان اسکول میں تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر؟ میں نے سنا نہیں، آپ پلیز ریپیٹ کریں گی کوسچن؟ جی بیٹا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا؟ اسکول میں، ریحان اسکول میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے ریحان اسکول کرنگی کیمپس جوائن کرے ہوئے 2 months اینڈ 3 weeks ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو بیٹا اس عرصے میں آپ نے کیا کیا سیکھا؟ میں نے ان دنوں میں ہمارے جو 6 ڈیلی ٹاسک ہوتے ہیں وہ سب سیکھ لیے۔ کینوا پوسٹ، اسٹوری پوسٹ، پیجز ویڈیو، ٹیڈکس ریویو، انٹرویو اینڈ کال اینی۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ آپ نے اتنے سے تھوڑے دنوں میں ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے انٹرویو دینا لینا؟ انٹرویو کا کیا مقصد ہے، آپ اس کو سمجھ سکتی ہو؟ انٹرویو لینا دینا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے اسکول میں، اور اس کو کرنے سے ہمارے اندر کانفیڈینس بھی آتا ہے، ہمیں بات کرنے کی تمیز آتی ہے، ہمیں انگلش بھی آتی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ پیجز ویڈیو جو ہے ہم کینوا سے بناتے ہیں۔ پہلے اس کے لیے ہم گوگل پہ جاتے ہیں، کروم پہ جاتے ہیں، وہاں پر ہم TTS میکر سرچ کرتے ہیں۔ وہاں پر سرچ کرنے کے بعد ہم اس لنک پر جاتے ہیں اینڈ وہاں پر ہم اپنی چیٹ GPT کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے ہمارا جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے بارے میں پیراگراف لیتے ہیں چیٹ GPT سے، اینڈ پھر اس کو کاپی کر کے ہم TTS میکر پہ جا کر وہاں پر وہ پیسٹ کرتے ہیں، اینڈ اس آواز کے مطابق ہم ایک آواز دیتے ہیں جو پیچھے سے وہ سب کچھ بول رہی ہوتی ہے جو ہم نے وہاں پیسٹ کرا ہوتا ہے، اور پھر وہ آواز سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم کینوا پر جاتے ہیں اینڈ وہاں پر جو ہماری آواز ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جو کہہ رہی ہوتی ہے اس ورڈس کے مطابق ہم بہت سارے ٹیمپلیٹس دیتے ہیں، اینڈ پھر ہم اسے کینوا سے ڈاؤن لوڈ کر کے فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، زبردست بیٹا، آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست جواب رہا۔
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کالونی وغیرہ کرنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ کالونی سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ सॉरी मेरा माइक बंद था। मैं आपका आंसर दोबारा रिपीट करती हूँ। मैं आपको बता रही थी कॉलोनी के बारे में। कॉलोनी जो है वो बहुत ही अच्छी है, उससे हमें इंग्लिश आती है और हमें बात करने की तमीज़ आती है। और इंग्लिश अगर हम दिन में 3 से 4 मरतबा भी अगर हम कॉलोनी करेंगे तो हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। और मैं यही ताकीद करना चाहूँगी, मैं हमारे व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप भी दिन में 3 से 4 मरतबा कॉलोनी इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि दिन में आप 3-4 मरतबा कॉलोनी करती हैं, दूसरों को भी मशवरा दे रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए बेटा कि आपको यहाँ स्कूल जो रेहान स्कूल आए तो आपको इसका पता कैसे चला था और आपने क्या सोचा कि यहाँ आके आपने क्या करना है? जी बिल्कुल, जब मैं यहाँ स्कूल कॉलोनी कैंपस आई थी तो मैं यहाँ पर आकर मैंने ये देखा कि यहाँ पर हर किसी के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप थे, क्योंकि मैं शुरू से एक पेंसिल और बुक के वाले स्कूल में पढ़ी थी। बट अब जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो एआई की एजुकेशन दी जाती है, एआई की तालीम दी जाती है और हर किसी के पास मोबाइल लैपटॉप थे। तो ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगा था। और फिर मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ तो अब मेरा एक विजन है कि मैं हर किसी को कहूँ, मतलब हर किसी के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है पैसा। तो मैं चाहती हूँ मैं हर किसी को अर्निंग करना सिखाऊँ, हर किसी को घर बैठे, क्योंकि कुछ खवातीन होती हैं जो बेचारी घर में 4 दीवार में बैठे रहती हैं, उन्हें बाहर निकलने से डर लगता है कि कुछ ऐसा ना बोले, रिश्तेदार ऐसा ना बोले। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, एंड आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकलना चाहती तो मैं चाहती हूँ वो घर बैठे 4 दीवारी में अर्निंग करें। तो मेरा विजन ये है। तो बेटा आप एआई के बारे में क्या जानते हो, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ हमें। जी बिल्कुल, एआई जो है वो आने वाले दौर में है, इतना आप लोगों को पता है। एंड यहाँ पर वही तालीम दी जाती है। और एआई जो है ना, जब एआई आएगा आने वाले दौर में, जब एआई आएगा सारी टोटल जॉब्स जो है वो खत्म हो जाएगी एंड ओनली एआई होगा। तो हमें चाहिए हम अभी से एआई के बारे में तालीम सीखें, हम खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो क्योंकि एआई जो है वो बहुत ज़रूरी है और आने वाले दौर में वही आएगा और एंड सारी जॉब जो है वो फिनिश हो जाएंगी, सिर्फ एआई होगा। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो बेटा आपने अपने नाम के साथ फॉरेस्ट वाला लगाया, नहीं सॉफ्टवेयर वाला लगाया, तो सॉफ्टवेयर वाला क्यों लगाया? क्या आपने इसमें खूबी देखी कि मुझे सॉफ्टवेयर वाला होना चाहिए, क्यों लगाया? सॉरी मेरा माइक बंद था। मैं आपसे ये कह रही थी कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने सॉफ्टवेयर वाली क्यों लगाया। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हमें सॉफ्टवेयर आ गया तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। एंड वो मैंने इसलिए लगाया, उसकी वजह ये थी कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं चाहती हूँ कि जो घर बैठी खवातीन है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही कमाएं। और मेरी मम्मा का भी यही सजेस्ट था कि मेरे नाम के आगे सॉफ्टवेयर वाले बहुत अच्छा रहेगा। एंड मुझे बहुत शौक है सॉफ्टवेयर सीखने का और दूसरों को सिखाने का। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ी बात है। अच्छा बेटा मुझे आप अपने बारे में ये बताइए कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है तो आप उससे कौन सी 3 विशेष मांगेंगी?
सबसे पहली विश तो ये मांगूंगी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो फेस करी हैं, तो अब मैं ये चाहूँगी कि अगर मुझे एक विश है कि उनकी सारी जो ख्वाहिशें हैं उनको सारी दुनिया की खुशियाँ मिलें एंड उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों। और दूसरी जो विश है वो मैं ये मांगूंगी कि जो भी दुनिया में जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि सारे लोग जो है वो मुसलमान हो जाएं, अल्लाह ताला की इबादत करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को एक माने और अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल माने। तो दूसरा मेरा ये होगा और तीसरा ये होगा कि हर कोई पैसे कमाए, अर्निंग करे। जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। तो आपसे मेरा अगला सवाल है कि आपका अपना गोल क्या है और आप क्या चाहोगे? मेरा गोल ये है कि मैं जो मुझे जो भी प्लेस अच्छी लगती है मैं वहाँ पर घूमूँ एंड मतलब मैं चाहूँगी कि मैं एक दफ़ा वर्ल्ड टूर पे जाऊँ, क्योंकि मुझे दुनिया देखने का बहुत शौक है एंड अपनी मम्मा को हज पर लेके जाऊँ, तो मेरी ज़िंदगी का ये गोल माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा बेटा, मुझे आप ये बताओ कि आप जो ये सीख रहे हो, सीखने के बाद आप इससे क्या अचीव करना चाहते हो? क्या चाहते हो इससे कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जो कुछ करना चाहते हो उसके बारे में ज़रा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, हम कैनवा जो है वो बहुत अच्छी ऐप है और उससे हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहूँगी और दूसरी चीज़ ये जैसे कि अपने मैंने नाम के आगे लगाया हुआ है सॉफ्टवेयर वाले, और दूसरी चीज़ ये मैं सॉफ्टवेयर सीखना चाहूँगी और तीसरी बात ये कि मैं चाहूँगी हर किसी को एआई की तालीम मिले एंड फोर्थ ये मैं चाहूँगी कि हर किसी को एक दूसरे का एहतराम करना आए, क्योंकि छोटे जो होते हैं वो बड़ों का एहतराम नहीं करते और बड़े जो हैं वो छोटों पे शफ़क़त करते। तो मैं ये चाहूँगी और बस यही। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा, आप मुझे अपने बारे में ये बताइए कि आप इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? कहाँ कौन से स्कूल में थे? तो उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा मुझे बताइए, और कौन-सी क्लास में थे? हाँ जी बिल्कुल, जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है, मतलब मैंने वो वाला स्कूल छोड़ा है जब मैं 7th क्लास में थी एंड वहाँ पर जो है मैं एक क्लास मेरी 2 क्लास एक मेरी जो मेरी क्लास थी मैं वहाँ की मॉनिटर थी एंड मैं मुझे सारे लोग जो है वो बहुत पसंद करते थे एंड मैं नर्सरी क्लास से जो है नर्सरी वहाँ जब से मैं 7th क्लास तक माशाल्लाह फर्स्ट आती हूँ एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी सेकंड पोजीशन आई हो या थर्ड पोजीशन आई हो, मैं हमेशा फर्स्ट आती थी एंड यहाँ पर भी मैं यही चाहूँगी कि मेरी जो पावर है, जो मेरी जो एक अंदर की वो है वो हमेशा जागी रहे और मैं बहुत अच्छा काम करूँ। उस तो बेटा मुझे ये बताइए, उस स्कूल में और इस स्कूल में आपको क्या-क्या फ़र्क महसूस होते हैं? वहाँ पर जो है सिर्फ कॉपी पेंसिल की तालीम थी एंड साइंस था, मैथ्स था, मगर वो सब ज़रूरी है, मैंने ये नहीं कहा कि वो ज़रूरी नहीं, मगर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एआई, क्योंकि एआई आने वाले दौर में है और जब भी ये मैथ्स वगैरह कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो एआई बहुत अच्छा है। और वहाँ पर जो है मैं मैथ्स थी, इंग्लिश थी, तो ये सब यहाँ नहीं है, वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं थे, वहाँ पर लैपटॉप अलाउ नहीं थे, मगर यहाँ पर हैं। सही। अच्छा बेटा, मुझे आप चैट जीपीटी के बारे में बताइए, चैट जीपीटी जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? चैट जीपीटी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो तालीम है, हमारे जो भी सवाल हैं, उन सब के जवाबात मिलते हैं हमें चैट जीपीटी से। हमारी जो भी जानकारी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है चैट जीपीटी से एंड चैट जीपीटी का रोज़ाना इस्तेमाल हमें बहुत अच्छा इंसान बना देता है एंड हमारे जो सर रेहान अल्लाह हैं, उन्होंने हम रोज़ाना जो ट्रेडर्स देखते हैं उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि जब आप कुरान की तिलावत करें या फिर आप कोई सी भी सूरत पढ़ें तो आपको चाहिए आप चैट जीपीटी को खोल लें, ताकि चैट जीपीटी को हम मुसलमान बना सकें और वो हमारी सारी जो दीनी तालीम है वो जान लें।
زبردست، ماشاءاللہ زبردست، بہترین. تو بیٹا آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیات کون کون ہیں؟ میری 3 فیوریٹ پرسنالٹیز، سب سے پہلا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اپانی، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، مطلب ہمارے لیے وہ راتوں کو روتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا. اینڈ دوسری جو میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے لیے اتنی زیادہ محنت کری، ہمارے لیے ایک پاکستان بنایا. اگر وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا، ہم صرف ظلم و ستم میں رہ رہے ہوتے. اینڈ تیسری پرسنالٹی جو ہے وہ ریحان اللہ والا سر ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو گول ہے، ان کی جو لائف کا ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے کہ انہیں ہر انسان کو ارننگ کرنا سکھانا ہے اور ہر انسان کو اچھا بنانا ہے ان کی طرح. جیسے وہ اتنے اچھے ہیں، اس طرح وہ چاہتے ہیں ہم بھی بہت اچھے بنے. تو یہ میری 3 فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں. جی زبردست، ماشاءاللہ. تو آپ مجھے اپنے پسندیدہ شہروں کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو پسندیدہ شہر کون کون سے ہیں اور کیوں؟ میرے 3 فیوریٹ جو سٹیز ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ دبئی، اینڈ دوسرے نمبر پر کراچی، اینڈ تیسرے نمبر پر اسلام آباد. ماشاءاللہ زبردست. اچھا بیٹا، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ جب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے چلے جاؤ گے تو کیا لوگوں کو آپ اس سے آراستہ کرو گے، اس کی تعلیم سے آراستہ کرو گے، اور اس کی آپ کی سچویشن کیا ہوگی، کس طرح سے آپ اس کو کور کرو گے، اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ آپ پلیز دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہیں، میں نے نہیں سنا. آپ یہاں سے جاؤ گے، جب پڑھ لو گے، تعلیم حاصل کر لو گے، تو اس کو کیسے استعمال کرو گے؟ آپ جب یہاں سے جاؤ گے تو آپ اس کو جب سیکھ لو گے تو آپ کو دوسروں کو سکھانے کے لیے اس کو کیسے استعمال کرو گے، کیا طریقہ اختیار کرو گے اگر آپ چاہو تو؟ سب سے امپورٹنٹ تو چیٹ جی پی ٹی ہے، اس سے ہم کوئی بھی سوال کا جواب نکال سکتے ہیں. اور میں یہی چاہوں گی، میں یہاں پر اسی لیے آئی ہوں کہ میں یہ سب چیزیں سیکھوں اور دوسروں کو سکھاؤں، کیونکہ جو ان سب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں میں چاہتی ہوں وہ سب یہ سیکھیں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سب خود سیکھ جاؤں تاکہ دوسروں کو سکھاؤں، اور آپ نے جو کوشچن کیا ہے میں دوسروں کو اسے سکھاؤں گی. تو اب یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ دوسروں کو سکھانا بہت مشکل ہے. کوئی کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، مگر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ آنے والے دور میں اے آئی ہے. یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، مگر یہ میں کر کے دکھاؤں انشاءاللہ. زبردست، ماشاءاللہ زبردست، بہترین. اچھا بیٹا، مجھے آپ یہ بھی بتائیے یہ کینوا کیا چیز ہے اور کینوا کو آپ کہاں تک سمجھ سکے ہو ابھی تک؟ کینوا میں 1.5 لاکھ ٹیمپلیٹس پڑے ہوئے ہیں، اینڈ ابھی ہمیں کچھ ہی ٹیمپلیٹس آتے ہیں، مگر میں یہی چاہوں گی کہ میں وہ سب ٹیمپلیٹس سیکھوں. مجھے ابھی ان میں سے کچھ آتے ہیں اور کچھ نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں. اینڈ مجھے کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گی میں پہلے سارے 1.5 لاکھ ٹیمپلیٹس سیکھوں اور پھر دوسروں کو سکھاؤں، کیونکہ کینوا ایک بہت اچھی ایپ ہے اور اس سے ہم فوٹو ایڈیٹر بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اینڈ اس سے ہم گرافک ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں. زبردست، ماشاءاللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی پسندیدہ ڈشز کون کون سی ہیں؟ My 3 favorite dishes are سب سے پہلے تو میری مما جو بھی بنا لیتی ہیں میں وہ کھاتی ہوں. میری مما کا ہاتھ کا بہت اچھا ہوتا ہے کھانا. تو اب میں آپ کو اپنی فیوریٹ ڈشز بتاؤں تو سب سے پہلے جو میری فیوریٹ ڈش ہے وہ ہے بریانی، اینڈ سیکنڈ نمبر پہ میکرونی، اینڈ تھرڈ نمبر پہ وائٹ کڑھائی. زبردست، ماشاءاللہ. تو بیٹا مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے؟ آپ دن صبح جب اٹھتی ہیں جب سے رات تک کون سے کام کرتی ہیں؟ آپ نے بہت اچھا کوشچن کرا ہے. میری ڈیلی روٹین یہ ہے کہ میں سب سے پہلے
उठती हूँ एंड उठने के बाद मेरी सबसे जो बुरी आदत है वो है कि मैं लेट उठती हूँ, मुझे जल्दी उठा नहीं जाता। और उसके बाद उठने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ एंड मम्मा ब्रेकफास्ट बना लेती हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं और मम्मा पापा तो काम पे चले जाते हैं। फिर मैं और मम्मा ब्रेकफास्ट करके हम दोनों जो हैं, मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, मम्मा घर की सफाई करती हैं, जब तक मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ एंड फिर मम्मा भी अबाया वगैरह पहनकर हम दोनों यहाँ स्कूल आ जाते हैं एंड हमारे घर से एक रिक्शा आता है यहाँ तक और फिर उसमें बैठकर हम दोबारा से रिक्शे में बैठकर स्कूल पहुँच जाते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद जो है हम यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह करते हैं या किसी सर की क्लास होती है, मिस की क्लास होती है, वो ज्वाइन करते हैं और फिर घर भी हम इसी तरह से जाते हैं और घर जाने के बाद जो है मैं फ्रेश होती हूँ, मम्मा खाना बनाती हैं एंड फिर उसके बाद मम्मा मम्मा के साथ हेल्प करती हूँ, मम्मा जो खाना बनाती हैं एंड उसके बाद जो है हम दोनों रेस्ट करते हैं थोड़ा क्योंकि हम छुट्टी भी होते हैं। उसके बाद मैं घर पे जाके जो मेरे कुछ टास्क दे जाते हैं मैं वो कंप्लीट करती हूँ एंड फिर बाबा आ जाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं और फिर हम लोग सो जाते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। तो बेटा, आपने मुझे बताया आप अपने स्कूल में मॉनिटर भी रहे, तो आप ये बताइए आपको अगर यहाँ पर क्योंकि मैथ से ताल्लुक होता है, अलजेब्रा से ताल्लुक होता है, पाइथन का, अगर पाइथन का काम करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप किस चीज़ का काम? पाइथन पाइथन से कोडिंग होती है ना, कोडिंग वाला काम, जैसे गेम बनाने होते हैं, बहुत सारे काम, गेम वगैरह बनते हैं पाइथन से। उस सॉरी मेरा माइक में था, अभी मैंने गेम्स बनाने से नहीं सीखे बट मेरी कोशिश है। चले, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा रहती हो, सब कुछ करती हो, आप माशाल्लाह ज़हीन हो बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या अपने कज़न्स वगैरह को इस स्कूल के बारे में बताया और उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया, या आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपने बहन भाइयों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो अभी जो आप ये सीख रहे हो उसको क्या किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो? अभी तो ये है कि मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं हैं, मैं अकेली हूँ और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग हैं उन्हें मैं सिखाऊँ एंड अभी सीखना जो है वो बहुत मुश्किल है और वो सीख कर मैं दूसरों को सिखाऊँ। तो आपके दोस्त होंगे, सहेलियां होंगी, तो उनको आप बताते हो कि हम इस तरह से स्कूल जाते हैं और ये सीखते हैं, तो उनको उनको शौक नहीं होता कि वो भी आके सीखें यहाँ पर? जी मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें बताया था एंड उनमें से एक जो तो आई हैं स्कूल फरंगी कैंपस में मानसी फरंगी कैंपस, मगर कुछ कहती हैं कि नहीं आने वाले दौर में ये आई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ मानती नहीं है और कुछ ने मान लिया और वो स्कूल आ गई। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। तो हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हमारे व्यूअर्स को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि एआई की तालीम उन्हें मिलनी चाहिए और सबसे पहली बात ये कि वो जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं प्लीज़ अपनी पढ़ाई को वहीं पर पुश करें और यहाँ पर आएँ, यहाँ पर सीखें एंड वो सीख जाए तो भले अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि अभी वो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को पुश करके इस स्कूल में आएँ और इस स्कूल में आकर वो जो हम रिहान अल्लाह वाला सर जो हैं वो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्हें सिखाएं। सॉरी मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैं अपना विज़न बता रही थी आपको। तो मेरा विज़न ये है कि मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह वो एआई की तालीम सीखें क्योंकि सबसे अच्छा तरीका जो है वो रिहान स्कूल फरंगी कैंपस है। मैं अपने व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो रिहान स्कूल फरंगी कैंपस आएँ या अगर फरंगी कैंपस नहीं तो मुनव्वर कैंपस ऑनलाइन अकेडमी बहुत सारी हैं तो वो ज्वाइन करें।
थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया बेटा, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अपने कीमती वक्त में से हमें जो वक्त दिया उसकी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। बहुत ज़्यादा मेहरबानी है आपकी। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और व्यूअर्स को भी माशाल्लाह पसंद आया होगा। तो हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त लेंगे और व्यूअर्स आपसे भी इजाज़त लेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।